Jai Narayan student, welcome back here. I hope all are well. Now myself Nidhi Lal. Today we going to discuss chapter number 3 Nationalism in India, and today topic for reason for civil disobedience movement, and this lecture number is student 6, and main two factor of that shape first Simon Commission of 1927 and Great Economic Depression of 1929, and first part of discuss ki the Simon Commission. Simon Commission it means student ki first of all Britain set up the some commission under Sir John Simon, and a statutory commission under the Sir John Simon, and was constituted by the Tory government in Britain to look into the functioning of the constitutional system in India and suggest the changes. Why student? Because all the members for the commission, all the members of the commissions were Englishmen, and it did not provide any hope of Swaraj to Indians. So it was to look into the functioning of constitutional system in India student and suggest the changes. Why? Because the but problem was all the members were British and no one Indians. And when Simon Commission arrived in India in 1928 and was boycotted by all the leaders of the Congress as well as the Muslim League, and in October 1929 Lord Irwin announced an uncertain offer to dominate status for India and round table conference to discuss the future constitution in December 1929. So student, I know that ki all members are Englishmen and no one Indians, and first of all ki when Simon Commission is arrived in India 1928, and it was greeted with go back Simon. It was greeted with go back Simon, and all parties including Muslim League, Congress, and participate in the demonstration this part. And first of all in October 1929 Lord Irwin announced the uncertain offer of dominant status for India and round table conference to discuss the future constitution. वहाँ पर बात हुई, डिस्कस किया गया, और वहाँ फिर इन दिसंबर 1929 में अंडर जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज स्टूडेंट पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस. It was declared that 26 January and 1930 would be celebrated as the Independence Day, and people had to took a pledge for complete independence. Or first of all now second problem in this Great Depression of 1929. So student, are you know that ki first of all Simon Commission of 1927 what problem first I am already discussed, and second problem student firstly ki Great Depression, the worldwide economic depression also affected in India as agriculture prices and begin to fall from 1926. Okay student, 1926 and collapsed after 1930. And main problem student ki crop failed ho gayi and export declining, and peasant found it hard to sell and their produce and pay their revenues. Now the agriculture prices began to fall, agriculture goods and export decline, and peasant found it difficult to sell their the harvest crops and pay their the revenue. मेनली उनको था कि हम कैसे रेवेन्यू पे करेंगे, और ये सारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगी. तो इसके बाद गांधी जी ने क्या डिसाइड किया? नाउ स्टार्ट सी इन दिस. First of all, I am already discussed the Great Depression. The depression had deep impact on the agricultural and industry goods. Poverty increased by 1930 due to the high taxes. और इस डिफ़िकल्टीज़ में भी उन्हें हाई टैक्सेस पे करना पड़ा था, और ये सारे रीज़न थे. साइमन कमीशन में कोई भी इंडियंस नहीं थे, और वो उनकी कोई भी जो भी उन्होंने कॉन्फ्रेंस मीटिंग वगैरह भी रखी, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में भी उनको कोई भी होप नहीं था कि वो स्वराज मतलब उन्हें मिलेगा, इस तरीके की इंडिपेंडेंस. इस वजह से वहाँ पर फिर आपने देखा कि जवाहरलाल नेहरू ने इन दिसंबर 1929 में अंडर जवाहरलाल नेहरू
नेहरू ने लाहौर में कांग्रेस जाके अपनी डिमांड पूर्ण स्वराज की रखी, फुल इंडिपेंडेंस, एंड इट वाज डिक्लेयर्ड दैट कि 26 जनवरी 1930 would be celebrated as the Independence Day, and when people had to took a pledge for complete independence. But some reason no one success this part. तो लॉर्ड इरविन इन अक्टूबर 1929 अरेंज, जैसा कि अभी हमने बताया कि अरेंज किया उन्होंने राउंड टेबल एंड कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, बट कांग्रेस लीडर वेयर नॉट सेटिस्फाइड, and so in December 1929 under the leadership of Jawaharlal Nehru, Lahore a Congress session and demanded Purn Swaraj. So 20 January 1930 was celebrated as a Independence Day, but is not attracted very little attention. कुछ ही लोग इससे अट्रैक्ट हुए, सभी अट्रैक्ट नहीं हो पाए, तो इस वजह से गांधी जी ने इसको आगे कंटिन्यू किया। दूसरे क्या लाने की बात करी, और देखिए इसके आगे क्या होता है कि 31 जनवरी, सी इन दिस पिक्चर, civil disobedience. On 31st January 1930, Gandhi ji sent a letter to Lord Irwin with 11 demands that included demand to abolish the salt tax. उन्होंने अपनी डिमांड को इरविन पैक के साथ रखा कि 31st January 1930 Gandhi ji sent a letter to Lord Irwin with 11 demands that included the डिमांड टू एबॉलिश, और उन्होंने एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश करने की डिमांड रखी, एंड गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट, एंड एज इरविन रिफ्यूज टू एंटरटेन एनी ऑफ दीज ऑफ अगर आप, उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी डिमांड को, गांधी जी ने कहा कि अगर आप मेरी 11 मार्च तक डिमांड कंप्लीट नहीं करते हैं तो हम यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लाएंगे। तो इरविन रिफ्यूज टू एंटरटेनमेंट एनी ऑफ दीज ऑन 11 मार्च, एंड लॉर्ड इरविन ने कहा कि ये अनरेस्ट्रिक्ट चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हम नहीं करेंगे। तो नाउ गांधी जी ने, आपने देखा कि गांधी जी सेंट अ लेटर टू वाइसरी इरविन स्टार्टिंग द 11 डिमांड, बट द आइडिया वाज टू मेक डिमांड वाइड रेंजिंग, और उनका डिमांड था कि इस तरीके से बहुत जो भी रिच पुअर सभी यूज़ करते हैं, सो डैट क्लास विद इन अ Indian society could be united, and some demands were to abolish salt tax and look into the land revenue also. तो जैसा कि आपने देखा कि बहुत ज़्यादा ग्रेट डिप्रेशन था, वहाँ पे रेवेन्यू उनको पे करना पड़ा था, तो बट वाइसरे इज डिड नॉट एक्सेप्ट गांधी जी डिमांड। आपने देखा कि गांधी जी ने उनकी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया, बट वाइसरे डिड नॉट एक्सेप्ट गांधी जी डिमांड, एंड 11 मार्च 1930 एंड गिव अल्टीमेटली उनको एक टर्न लेना पड़ा इफ डिमांड वेयर नॉट फुलफिल्ड। तो देन कांग्रेस वुड लॉन्च सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और उन्हें अल्टीमेटली सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लाइव। नाउ सी इन दिस पिक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ऑलरेडी डिस्कस दिस पार्ट कि ऑन 31st January 1930 गांधी जी सेंट अ लेटर टू वाइसरी इरविन stating the 11 demand, and the idea was to make demand wide ranging so that all classes within Indian society could be united, student, and some demand were to abolish and salt tax, look into the land revenue, and but Viceroy did not accept Gandhi ji demands. नाउ स्टूडेंट, जब उन्होंने डिमांड कंप्लीट नहीं की लॉर्ड इरविन, तो 11 मार्च 1930 एंड gave an ultimatum, if demand were not fulfilled, then Congress would launch the CDM students, civil disobedience movement. And now see student, civil disobedience movement, Gandhi ji selected the salt as salt. Why? Because salt was something consumed by rich and poor, all had to pay tax to government, and Mahatma Gandhi started his famous salt march, Dandi March. Now see, he chose the salt as a symbol to unite the nation, as everyone used in daily life and paid the tax for it. Now next, civil disobedience. This is the map show ki first of all Sabarmati and Dandi March, 400 kilometers is the distance. See in this picture. See,
Now next, Gandhiji selected a salt as salt was something consumed by rich and poor. Okay, all had to pay tax to government. Government had monopoly over salt production, other cannot produce. और कोई आपने देखा कि गवर्नमेंट जो है मोनोपोली थी और कोई इसका अदर प्रोडक्शन नहीं था। इस वजह से गवर्नमेंट गांधी जी ने डिसाइड किया कि रिच एंड पुअर सभी लोग इसको यूज़ करते हैं। और जब आपने देखा कि गांधी जी रोट अ लेटर टू वाइसरे इरविन अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ सम डिमांड विच वेयर स्पेसिफिक एंड जनरल इन नेचर, आपने देखा कि उन्होंने उनकी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया। तो ऑफ ऑल द डिमांड्स फॉर एबोलिश सॉल्ट टैक्स वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ वन। उन्होंने देखा कि सॉल्ट ही हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो गांधी जी टॉट टू रेज द डिमांड फॉर द एबोलिश ऑफ salt tax and with which the society could be brought. And together he saw in the act of powerful masses that would be unite Indians for a mass struggle. और इस तरीके से mass struggle होगा। and salt was once such a common commodity that was used by every section of the society, rich poor सभी यूज़ करते हैं। और the British government had imposed tax and acquired the monopoly rights to produce salt, and it resulted in increase in its price. Now see in this mainly कि CDM, अगर आप मेरी चीज़ों को मतलब इसमें टैक्स को हमारे नहीं उसको रिलैक्स करेंगे, नहीं उसको वो कम करेंगे, तो हम CDM लाएंगे। CDM मीन्स होता है स्टूडेंट की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हम नॉट ओबेइंग द गवर्नमेंट लॉ, हम गवर्नमेंट के लॉज को ओबे करेंगे, नॉट ओबेइंग द गवर्नमेंट लॉ। तो गांधी जी स्टार्टेड द डांडी मार्च, और इस तरीके से गांधी जी ने स्टार्ट किया डांडी मार्च। सी इन दिस पिक्चर, डांडी मार्च में 78 ट्रस्टेड वॉल्टियर्स थे। 390 किलोमीटर उन्होंने डांडी मार्च में किया। एंड साबरमती डांडी, यहाँ साबरमती से डांडी हमने आपको भी मैप शो किया, इतना इन्होंने डिस्टेंस कवर किया। एंड 6 अप्रैल लीज द गांधी जी एंड वायलेटेड लॉ एंड मैन्युफैक्चर द, उन्होंने मैन्युफैक्चर किया सॉल्ट एंड बाय बॉइलिंग वाटर। तो आपने देखा इस तरीके से डांडी मार्च किस तरीके से हुआ कि महात्मा गांधी जी स्टार्टेड इस फेमस जो देखते आपने देखा कि सॉल्ट मार्च एंड डांडी मार्च कॉर्पोरेट जो आपने देखा इसका मेनली इसकी कि बाय 78 फॉलोअर्स फॉर हिज आश्रम। आश्रम वही लाइक आश्रम साबरमती टू गुजरात एंड कोस्टल टाउन टू डांडी, रीचिंग देयर he openly violent the salt law or manufacturing the salt by boiling sea water. तो मार्केबल क्या चीज़ किया उन्होंने, दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और इस तरीके से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया। And as the movement spread, foreign cloth and were clothed liquor shops, picket, peasant refused to pay taxes, and while villages offered resign. और इस तरीके से जब डांडी मार्च में सिविल डिसोबीडियंस हुआ तो बहुत लोगों ने भी सब ने रिज़ाइन किया। और क्या चीज़ें हुई देखिए नाउ सी। सिविल डिसोबीडियंस में कॉलोनियल गवर्नमेंट स्टार्टेड द अरेस्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल सिविल डिसोबीडियंस स्टार्टेड बाय गांधी जी फेस्ड, आपने देखा गांधी जी ने स्टार्ट किया। और फर्स्ट ऑफ ऑल अटैक किया ब्रिटिश ने, फिर रिचुअल रिस्पॉन्स को देखते हुए जो भी इन्होंने, और फ्रॉम द ब्रिटिश एंड देयर was large scale attack on the satyagrah. Even women, children were not sprayed and beaten or badly. Thousands of the protesters were arrested. आप देख रहे हैं colonial government started arresting all political leaders and Gandhi ji was also arrested, और of total of 60,000 Indian were arrested. तो जब सिविल डिसोबीडियंस इस तरीके से डांडी मार्च में हुआ और इस तरीके से उन्होंने सॉल्ट के लॉ को लाया और मैन्युफैक्चरिंग किया, तो जब सॉल्ट लॉ मैन्युफैक्चरिंग हुआ और इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मार्केबल मतलब उन्होंने ओबे किया उस रूल एंड रेगुलेशंस को, तो वहाँ की जो ब्रिटिश थी उन्होंने अटैक किया और इस तरीके से थाउजेंड्स ऑफ द प्रोटेस्टर वेयर अरेस्टेड। एंड आप दिस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि गांधी जी वॉज ऑल्सो अरेस्टेड। एंड नाउ दिस सिचुएशन फॉर गांधी जी टू कॉल ऑफ द मूवमेंट, और उन्होंने जब देखा कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इंक्रीज़ हो रहा है तो उन्होंने क्या किया, नाउ सी सिविल डिसोबीडियंट वॉज
civil disobedience movement was stopped by Gandhiji. All prisoners were released and Gandhiji insisted for second round table conference और उन्होंने एक second round table conference किया और इस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी. But this situation forced the Gandhiji to call off the movement and sign a pact of with Lord Irwin, and the pact of came to the Gandhiji as Gandhi Irwin pact फिर उन्होंने साइन किया और according to the past Gandhiji agreed to take part of the second राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन. तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट कहाँ हुआ था? लंदन में. और इस सिचुएशन में गांधी जी ने क्या पैक्ट लाया था? गांधी इरविन पैक्ट लाया और गांधी जी ने कॉल्ड ऑफ कर लिया किस मूवमेंट को? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. और अकॉर्डिंग टू द पास्ट गांधी जी एग्रीड की टू टेक पार्ट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन. इन टर्न द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर imprisoned during the movement. Now see, तो गांधी जी इरविन पैक्ट इस तरीके से गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आया. तो आपने देखा कि जो सिचुएशन थी जो इस तरीके की फोर्स हुआ तो गांधी जी टू कॉल ऑफ द मूवमेंट एंड साइन अ पैक्ट. और उसी पे उन्होंने साइन करने की पैक्ट रखा कि विथ लॉर्ड इरविन. और उस तरीके से उन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ किया? लंदन में. तो द पैक्ट केम टू बी कॉल्ड एज द गांधी इरविन पैक्ट. गांधी इरविन पैक्ट के नाम से हुआ स्टूडेंट. एंड अकॉर्डिंग टू द जो पास्ट जो भी चीज़ें हुई जो भी तो उसको देखते हुए गांधी अकॉर्डिंग टू पैक्ट ऑफ गांधी एग्री टू टेक पार्ट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन एंड इन टर्न द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज ऑल द political prisoner imprisoned and during the movement. तो स्टूडेंट आर यू नो डैट कि एज द मूवमेंट बहुत ज़्यादा जब इंक्रीज हो गया और आपने देखा स्प्रिट फॉरेन क्लॉज वेयर बाइकॉटेड, लिक्विड शॉप्स पिक्टेड एंड पीजेंट रिफ्यूज टू पे टैक्सेस वाइल विलेजेस ऑफर रिजाइन. तो वरिड बाय द ऑनगोइंग द मूवमेंट एंड द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन द अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर अनरिलीज रिचुअल रिप्रेशन. बहुत ज़्यादा उनको रिप्रेस कर बहुत ज़्यादा उनको परेशान करने लगी. तो एज अ प्रोमिनेंट लीडर ऑल मतलब उनको एबॉलिश करना था तो उन्होंने फिर सोचा कि अब इसको कॉल्ड ऑफ करना है. तो एज अ प्रोमिनेंट जो हमारे एक लीडर थे और अबुल गफर खान वॉज ऑल्सो अरेस्टेड. तो देयर वॉज द सर्वर वायलेंस एंड इंसिडेंट. द मूवमेंट हैड टू बी कॉल्ड ऑफ 5 मार्च 1931 and Gandhi ji signed a pact with Irwin and agreed the participation in the round table conference in London. और इस तरीके से उन्होंने लंदन में इस